Lord. Praise the Lord. खुदा पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो. खुदावन खुदा तेरी तारीफ हो यीशु जी. ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ ਹੋ ਯीशु ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯीशु ਨਾਸਰੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਫਜ਼ਲ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਲਈ ਯीशु ਜੀ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯीशु ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਯीशु ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਜਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਯीशु ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯीशु ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਯीशु ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵੋ ਯीशु ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा वंदा, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा वंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रूप बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदा वंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल ऐ खुदा वंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदा वंदा, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, ना था वजूद किसी शय का
जब ज़माने में खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Sister ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। God bless you. ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਏਗੀ। ਮਸਕੀਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਹਾਲੀਏ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਅਮਨਦੀਪ। ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰੂਹ 'ਚ ਬਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਨੱਸਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਫੌਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੇਰ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਠ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਜੰਗ ਚੂਹਾਂ ਨੂੰ। ਮਦਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਮਦਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਵੈਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਖੋ ਲੱਖ ਰੱਥ, ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਹੱਥ। ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੜਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੜਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਲਕਾਰੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ੁਰਤ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜ਼ੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰੂਹ 'ਚ ਬਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਨੱਸਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਲਕਾਰੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ੁਰਤ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
Amen. Praise the Lord. God bless you, sister जी. खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत देवे. मैं एक वर्स पढ़ूंगी. ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰੂਨ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। प्रेज द लॉर्ड। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले ढूंढो तुम उसकी राजबाजी, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले ढूंढो तुम उसकी राजबाजी, तो सब चीजें तुमको मिलती जाएंगी, तो सब चीजें तुमको मिलती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले ढूंढो तुम उसकी राजबाजी, जैसे उसने हमें माफ किया, आहा जैसे उसने हमें है माफ किया, क्या तुमने भी सबको माफ किया, आहा अब मोहब्बत ही मोहब्बत हर सू पाएगी, अब मोहब्बत ही मोहब्बत हर सू पाएगी, एक दूसरे का हम साथ निभाएंगे, हम एक दूसरे का सिर्फ साथ हम निभाएंगे। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले ढूंढो तुम उसकी राजबाजी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ। ਧਰਮੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਆਤਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਹਦੀਏ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਧੋ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਬੀਤ ਬੋਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੁਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਿਯੋਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਭੇਜ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਗॉड ब्लेस यू। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू अंजना। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको अपने नाम, अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत से, ताकत से इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद का दाहिना हाथ, कुदरत वाला हाथ आपके ऊपर हमेशा बढ़ रहे हैं और खुदावंद आपको अपने परों में छुपा के रखे, आपके सारे नाहमवार रास्तों को हमवार बनाता जाए, आपकी तरफ से होके जंग लड़ता रहे, ताकि आप शैतान पे फतह हासिल करती जाएं और ओवरकमर की तरह अपने तख्त तक पहुंचे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खुदावंद खुदा जान देने के लिए, तेरे जी उठने के लिए खुदावंद आप, तेरा खुदावंद खुदा जो हमें तूने खुदावंद दुनिया से चुन लिया, दुनिया से अलग कर लिया खुदावंद, तूने हमें शैतान की कैद से छुड़ा लिया खुदावंद, उसके खुदावंद मुंह में से निकाल के हमें ले आया है खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं कि वरना हम भी उन लोगों की तरह ही होते जो खुदावंद खुदा उसकी कैद में हैं, जो खुदावंद उसके साथ जाने वाले हैं जहन्नम की आग में। खुदावंद यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हमें अपने लिए अलग कर लिया ताकि हम तेरी इबादत करें खुदावंद खुदा, तेरे नाम को ऊंचा करें। ये बदन खुदावंद तूने अपने लहू को कीमती लहू को दे के खुदावंद शैतान से हमें खरीद लिया, हमारा फिदिया दिया खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। इसलिए बाप खुदावंद यीशु मसीह, अब ये बदन खुदावंद तेरे हैं, हमारा इन पे कोई इख्तियार नहीं है। हम अपने बदनों को तेरे सुपुर्द कर देते हैं, तेरे हवाले कर देते हैं, तेरे हाथों में दे देते हैं। हमारी जिंदगी का पूरा होल्ड खुदावंद हम तुझे दे देते हैं, क्योंकि खुदावंद ये तेरे ही हैं। इसलिए अब आप तो इनको ले खुदावंद, जो तू हमसे काम करवाना चाहता है, जिस के लिए खुदावंद तूने जमीन पे हमें भेजा है खुदावंद, वो हमारे जिंदगियों में खुदावंद हमारे बदनों के जरिए से वो काम सब हम कर सके, हम फतह पे फतह हासिल कर सके। शैतान का कोई जोर हमारे ऊपर चलने ना पाए कि हमारे जिस्म के किसी भी अज़ा को वो अपने लिए इस्तेमाल करे खुदावंद। तेरे पाक खून की कवरिंग में एक एक को दे देती हूँ, ताकि खुदावंद वो जब भी हमारी तरफ देखे, वो जब भी हमें छूने की, टच करने की कोशिश करे खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद उसको आग लगती रहे और खुदावंद वो किसी भी तरीके से हमें टच ना करने पाए खुदावंद, हमारे बदनों को इस्तेमाल ना करने पाए यीशु के नाम से खुदावंद। हमारे बदन हमेशा तुझ में छुपे रहें खुदावंद, हमारी सोचें, ख्याल, रूह, बदन, जान खुदावंद यीशु तेरे पाक और तेरे पुत्र लहू से धुलते रहें, पाक और साफ होते रहें, ताकि खुदावंद वो जब भी हमें देखे खुदावंद यीशु उसको तू नजर आए खुदावंद, और खुदावंद वो हर कदम पे, हर सांस में शर्मिंदा होता रहे। जब भी हमारी जिंदगी को देखे तो खुदावंद खुदा वो कुड़ता रहे, उसको कहीं पे भी खुदावंद हमारे कामों से, हमारे बदनों से खुदावंद उसको सुकून ना मिले, बल्कि खुदावंद बाप खुदावंद यीशु मसीह जब भी वो देखे खुदावंद खुदा उसको शर्मिंदा होना पड़े, उसको खुदावंद खुदा
हमारी जिंदगियां जब वो देखे तो खुदा उसको आग लगती रहे यीशु के नाम से। और हम खुदा तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां हैं खुदा पाक, खुदावंद हम तुझ में पाक और पवित्र होते जाएं खुदा, तेरे नाम के वसीला से, तेरे कलाम के वसीला से, खुदा यीशु मसीह तेरे लहू के वसीला से हम रोज 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 धुलते रहें, पाक और साफ होते रहें, ताकि हमारी जिंदगी में, हमारे बदनों के ऊपर, हमारे रूह बदन जान के ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना रहे। और खुदा हम तुझ में जोर पकड़ते जाएं, खुदा तुझ में ये व्यस्त होते जाएं, तुझसे जुड़ते जाएं खुदा। और खुदा हर सांस में, हर पल में दुश्मन की फौजों को खुदा उसकी सारी कुदरत को पांव तले कुचलते रहे खुदा यीशु, उसको कहीं पे भी खुदा हमारी जिंदगियों में आने के लिए जगह ना मिले। हम उन सारे सुराखों को, खिड़कियों को, दरवाजों को खुदा यीशु तेरे लहू से बंद कर देते हैं यीशु के नाम से। कहीं पे भी उसने हमें ज़हनी परेशानी में है, हम किसी भी, कोई भी हमारी जिंदगी में कोई फिक्र की वजह से हम परेशान हैं खुदा, कोई बीमारी है, दर्दों की वजह से खुदा कहीं पे भी हमारे बदनों के अंदर कोई ऐसी बीमारी है, कोई लानती बीमारियां काम कर रही हैं जिसकी वजह से हमें वो दुख दे रहा है, हमें दर्द दे रहा है, वो खुश हो रहा है यीशु के नाम से। उन सारी वजह को, वजूहात को, उन सारी बीमारियों को, उन सारी परेशानियों को, उन सारी लानतों को खुदा यीशु के नाम से खुदा अपने बदन के एक एक अज़ा से, अपने घरों से यस्सु के नाम से खत्म कर देती हूँ, उनके सारे लिंक को तोड़ देती हूँ यस्सु मसीह नासरी के नाम से। खुदा हमारे बदनों के अंदर खुदा जो भी किसी भी तरीके से वो बीमारियां लेके आया हुआ है, कहीं पे भी हमारे जिस्म को उसने जकड़ा है, कहीं कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है खुदा हमारे बदनों में खुदा उसने खून की खराबी लेके आया, दिल की कोई बीमारी है खुदा चेस्ट की कोई बीमारी है, गले की बीमारी है खुदा दर्दे हैं खुदा यस्सु, खुदावंद पेट की कोई भी प्रॉब्लम है खुदावंद, लीवर की प्रॉब्लम है खुदावंद, आंखों की बीमारियां हैं खुदावंद यस्सु के नाम से खुदा वो सारी तेरी लहू से पाक और साफ हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो सारी अंदरूनी बीमारियां, वो सारे दुख, वो सारे दर्द जो हम किसी से कह नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, अपनी दर्द को समझा नहीं सकते खुदा, वो सारे दर्द खुदा यस्सु तेरे नाम से खत्म हो जाए खुदा। और हम तेरे लोग खुदा तुझ में तेरी शफा को खुदा रिसीव करें खुदा यस्सु के नाम से। हमारी जिंदगियों में खुदा तसल्ली, इत्मीनान, खुशी, शादमानी खुदा और खुदा आजादी, बहाली आ जाए खुदा यस्सु के नाम से। कहीं पे भी खुदा जिस्म के किसी भी हिस्से को उसने जकड़ा हुआ है, सोचों को जकड़ा हुआ है, हम हर वक्त परेशान रहते हैं, हमें फिक्रें खुदा बीमार कर रही हैं खुदा यस्सु के नाम से। किसी भी तरह से कोई घर की प्रॉब्लम है खुदा कोई भी फिक्र है खुदा हमारे अंदर, कोई डर है, कोई खौफ है कि कहीं कुछ हो ना जाए खुदा, हालात की फिक्र है खुदा मौत का डर है खुदा, बीमारियों का डर है खुदा कहीं किसी की चीज को छूटने का डर है खुदा यस्सु के नाम से खुदा वो सारा डर और खौफ यस्सु के नाम से खत्म हो जाए। और खुदा तेरी तसल्ली, तेरी खुशी, तेरी शादमानी खुदा तेरा इत्मीनान जो बयान से बाहर है वो हमारे अंदर आ जाए खुदा तू भर दे खुदा इत्मीनान से, अपने इत्मीनान से खुदा वो तसल्ली आ जाए खुदा कि हमारे सारे काम, हमारे सारे दुख, हमारे सारे दर्द खुदा यीशु तूने अपने ऊपर ले लिया खुदा ताकि हम तुझ में खुदा तसल्ली को, इत्मीनान को खुदा शिफा को रिसीव करें यीशु के नाम से खुदा कहीं पे भी खुदा हमारे किसी ने कुछ किया है, कोई जादू टोना है, कोई तवीज धागा है, कोई किसी ने हमारे खिलाफ कुछ बोला है, पढ़ा है खुदा यस्सु के नाम से खुदा कोई चिल्ले चढ़ाए हैं उसने हमारे खिलाफ, यस्सु मसीह नासरी के नाम से उनके सारे लिंक को तोड़ देती हूँ, काट देती हूँ
उसकी डोरियों को खुदा जो हमारी रूह से जुड़ गई हैं, यीशु के नाम से उन सारी डोरियों को काट देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, ताकि खुदा हम तेरे लोग खुदा आजादी से, बहाली से, खुदा खुशी से, शादमानी से तेरी इबादत करें, और खुदा तेरा दहना हाथ हमारे ऊपर बड़ा रहे। खुदा तू हमें अपने परों में छुपा के रख। खुदा तेरा हाथ हमारे ऊपर खुदा शफकत वाला हाथ, हमेशा फजल वाला हाथ बड़ा रहे खुदा यस्सु के नाम से। खुदा तेरा खुदा मसा हमारे ऊपर हमेशा ठहरा रहे, जब तक के खुदा यीशु मसीह तू आ नहीं जाता, हमें अपने साथ ले नहीं जाता खुदा, तब तक तू हमें संभाले रख खुदा। मीटिंग में जितने मौजूद हैं, जो हमारे ग्रुप में हैं, सबके घरों के जगह खुदा तेरे अच्छी रथों का पहरा लगा देती हूँ खुदा, बुनियादों से लेके छतों तक खुदा, एक एक चीज को, एक एक इंच को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदा। बच्चों की स्टडी को खुदा, जॉब्स को खुदा, रुपए पैसे को खुदा, एक एक चीज को खुदा हमारे हर मामलात जो है हमारी जिंदगी का खुदा, उन सबको खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदा। किसी भी तरीके से खुदा दुश्मन हमें छूने ना पाए खुदा, वो हाथ बढ़ाए खुदा, उनके ऐसी दुश्मन की फौजों को खुदा जो हमारी तरफ हाथ बढ़ाती हैं, उन दुश्मन की फौजों के हाथों को काट देती हूँ खुदा, उसकी उंगलियों को तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से। जो भी दुश्मन की फौजें हमारे खिलाफ काम कर रही हैं खुदा, वो तेरे नाम से, तेरी कुदरत से खुदा वो पानी की तरह बह जाए यीशु के नाम से, और तेरा जोर, तेरा रोब, तेरा दबदबा हमारे ऊपर ठहरा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। जब हम इस पानी को लें, इस रोटी को लें, तो खुदा हमारे अंदर वो तेरी मुर्दों में से जी उठने वाली कुव्वत, तेरी ताकत, तेरी कुदरत फ्लो करना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। खुदा जिस तरह खुदा तुझ में खुदावंद तेरी पाखरू की कुदरत, तेरी के ताकत से खुदा तू मुर्दों में से जी उठा खुदा, वही तेरी ताकत खुदा, तेरा जोर हमारे बदनों के अंदर भी दौड़ जाए, ताकि ये सारा जो असर है हमारा हमारे बदनों के ऊपर दुश्मन का खुदा, वो सब खत्म हो जाए खुदा, और हम भी तेरी तरह फतेहमंद हो के खुदा दुश्मन को और शैतान को शर्मिंदा करते रहें यीशु के नाम से। खुदा जब हम इसको लें, इस रोटी को और इस पानी को खुदा हम तुझ में तटस्थ होते जाए खुदा तेरी जो कुदरत है हमारे अंदर फ्लो करना शुरू हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम ईमान से इस पानी को लें और इस रोटी को लें, जो कि खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर इस लहू को बहाया और अपने बदन को तोड़ा ताकि हम शिफा पाए, हम आजाद हों, हम बहाल हों। आमीन। हालेलुया। हम सबका ईमान है कि हमारे खुदा यीशु मसीह के लहू में कुव्वत है और कुदरत है, ताकत है। जहां जहां इसको लगाते हैं हम पहले जैसे नहीं रहते। हम हमारी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह की शिफा जो है वो आना शुरू हो जाती है। कहीं को रिश्तों में दरार है तो खुदा यीशु मसीह के लहू में वो कुव्वत है, ताकत है, वो उसको भी भर देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमने ये पिछले दिनों जो स्टडी ली, उससे पहले हम काशवा 14 बाब हमने शुरू किया था, और एक मेरा ख्याल है हमने लेसन जो था वो लिया था, जिसमें हमने सीखा था कि जो काशवा 14 बाब उसके पहली 2-3 आयतों पे हमने बात की थी कि जो सहून में ये खड़ा है, कि बर्रा खड़ा है और उसके साथ जो है 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पे उसका
उसका नाम और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। तो इस पे थोड़ी सी हमने बात की थी, तो थोड़ा सा हम पीछे से देख के फिर आगे चलेंगे कि इस चैप्टर में तकरीबन 4 जो बातें हैं उनके ऊपर बात हुई है कि सहून पे ये जो लोग हैं ये कौन है, 1,44,000 जो लोग हैं ये कौन है, और फिर 3 फरिश्ते जो ऐलान कर रहे हैं उनका जिक्र है इस चैप्टर में, और मुसीबत के पहले हिस्से में जो शहीद होंगे उसको उनका जिक्र है, और फिर जिक्र है कि जो नाफरमान कौमें हैं जिनके ऊपर ये मुसीबत आएगी, जिनकी अदालत होगी, यानी जो अंगूर हैं रौंदे जाएंगे, खुदावंद के हौज का जिक्र है ना। और जो शहीद होंगे उनको इस चैप्टर में उनको फसल की कटाई के साथ एक किस्म की कह लें तशबीह दी गई है, और जो कौमें रौंदी जाएंगी उनको अंगूरों से तशबीह एक किस्म का दी गई है ना। तो इसमें इसलिए 4 किस्म के जो बातें हैं इस चैप्टर में हुई हैं। तो ये 1,44,000 लोग हैं, और सहून में बर्रा खड़ा है। इस पे हमने थोड़ी सी बात की थी। हमने देखा कि चैप्टर जो 12 था उससे हमने देखा कि सीखा था कि ये जो हम मसीही हैं वहां से एक किस्म की जो रोया है वो जो यूहन्ना आरफ था खुदावन ने उसको दिखाना शुरू की थी। यानी इससे पहले 11 चैप्टर तक प्रकाश के जो पहले 11 चैप्टर हैं उसमें इसराइली कौम से बातचीत हो रही थी है ना, या उसके बारे में रोया जो था खुदावंद यूहन्ना आरफ को दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही 12 चैप्टर शुरू हुआ वहां पे क्या था, खुदावंद जो था वो आप कह लें गैर कौमें या हम मसीही जो है उनके बारे में रोया जो थी, या उनके नुक्ता नजर से खुदावंद उसको रोया दिखाना खुदावंद के बंदा को शुरू हुआ था है ना। तो जब 12 चैप्टर शुरू ही हुआ तो हमने देखा कि उसमें रैप्चर का जिक्र आता है, यानी वो मर्द बच्चा जो है और यानी वो आसमान पे उठा लिया गया, और असहा जो था उसकी माइकल फरिश्ते के साथ जंग हुई और वो जमीन पे गिरा दिया गया है ना। तो ये खुदावंद का बंदा जैसे जैसे देख रहा है वैसे वैसे वो आ, एक बात को जैसे कह लें कि वो हमारे साथ शेयर कर रहा है। तो इसलिए इसमें कुछ तरतीब जो है जिसे कह लें इस तरह है कि एक बात को जैसे उसने कवर किया वो एक चैप्टर है, फिर दूसरी बात को यानी जो कुछ वो देख रहा है तो उसने कवर किया है ना। तो 13 चैप्टर जो था उसमें हमने देखा कि जब वो जमीन पे आया, या जो एंटी क्राइस्ट है और वो असहा, तो उसने क्या क्या काम जो है वो अ, करने जो थे वो शुरू किए है ना। लेकिन उस दौरान यही हम देखते हैं कि जैसे इसने 12 चैप्टर में देखा कि जो वो मर्द बच्चा है यानी खुदा यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो आसमान पे उठा ली गई है। तो अब ये 14 चैप्टर जो है अब खुदावंद उसको ये दिखा रहा है कि ये जब उठा ली गई है जो दुल्हन है, तो उसमें भी 2 ग्रोह थे, उसमें भी 2 किस्म के लोग थे, एक यरूशलेम के और एक सहून के है ना। यानी ये हमने पीछे सीखा इसमें देखा कि जब मेरा ख्याल वो हवाला हमने नहीं पढ़ा कि जो तैयार हमें कर रहे हैं, जो दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, एक तो खुदा पाक रूह हमें तैयार कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे भी जो उस्ताद हैं जो खुदा उनके खादम हैं जो दुल्हन को तैयार करें, सारे दुल्हन को तैयार नहीं करें, उनमें से भी कुछ लोग हैं जो खुदाम यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार कर रहे हैं है ना, कि उस तरह की वो स्टडी दे रहे हैं, उस तरह से वो खुद तैयार हो रहे हैं।
तो इस 14 चैप्टर में जो यूहन्ना अरफ है, खुदावन ने उसको दिखाया कि जो उठा लिए गए हैं और वो कहाँ पे खड़े हैं और उनके माथों पे किसका नाम लिखा हुआ है ना? तो इसलिए ये उनकी बात हो रही है जो 12 चैप्टर में उठा लिए गए थे और उनके साथ खुदावंद यीशु मसीह खड़ा है। तो इसलिए अ, हम उस दिन भी यानी कह लें बात की थी कि खुदावंद यीशु मसीह जिनके साथ खड़ा है वो और कोई नहीं, वो ओवरकमर हो सकते हैं जिन्होंने फतह हासिल की, जीत हासिल की और जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है ये उनकी बात जो है ये 14 चैप्टर में हो रही है ना? तो क्योंकि बहुत सारे लोग ये इसकी जो कह लें तशरीह है वो इस तरह करते हैं कि ये वो 1,44,000 जिनके ऊपर खुदावंद बाप की मोहर हुई थी 7वें चैप्टर में, ये वो लोग हैं। इसलिए कह लें मैं इनको जैसे क्या कहूँ कि थोड़ा ज़ोर दे के या बार-बार इनका ज़िक्र जो है या आयतों के ज़रिए आपको समझाने की या बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको फ़र्क जो है आयतों के ज़रिए भी पता चल जाए और ताकि कोई ऐसी जो क्योंकि बहुत सारी इस पे स्टडी होती है, हर मिशन में कह लें, हर जो फ़िरका है मसीहियों का, वो मुकाशफा के ऊपर बात करता है और हर कोई अपने-अपने जैसे कह लें उनके ऊपर खुदावंद मुकाशफे खोलता है या तशरीह जो है वो लोग करते हैं, है ना? तो इसलिए अ, आपने बहुत सारी इस पे स्टडी सुनी होगी, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हवालों के हिसाब से आपके ऊपर वो भेद जो है, जो पाक रूह हमारे ऊपर खोल रहा है, तो वो हवालों के हिसाब से और पूरी बाइबल किसी एक आयत को लेके स्टडी नहीं बनाई जाए, बल्कि पूरी बाइबल शुरू से लेके कह लें कि मुकाशफा की किताब तक हम अ, उन भेदों को खोलें या वो मुकाशफे जो हैं, जो हमें पता चलता है कि खुदावंद ने क्या थी रसूलों के ऊपर, नबियों के ऊपर जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, उनके ऊपर ये भेद जो थे खोले थे, जो कि पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन के ऊपर, जो खुदा उनके पाक पितर लोग थे, उनके ऊपर नहीं खुले थे। जो नए अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, ये खुदा उनके शागिर्द और आगे शागिर्दों के शागिर्द, खुदावंद उनके ऊपर ये भेद जो थे खोले थे खुदावंद ने, है ना? तो इसलिए हमें अब अगर रहनुमाई लेनी है तो खुदावंद पाक रूह से लेनी है। बाकी किसी स्टडी से नहीं, खुदावंद पाक रूह से क्योंकि ये सब किसके ज़रिए सब कुछ हो रहा है बाइबल या नया ऐतनामा जो है कह लें, वो खुदावंद पाक रूह के ज़रिए जो है वो बातचीत जो हो रही है ना? तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं इसकी तशरीह इस तरह करते हैं कि ये वो हैं 1,44,000 लोग जिनके ऊपर खुदावंद बाप की मोहर हुई थी। 7वें चैप्टर में मुकाशफा 7 बाब उसके 7वें चैप्टर में ये साफ-साफ लिखा है, हम हवाले में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उन सबको पता है कि हमने ये हवाले काफ़ी दफ़ा पढ़े हैं, है ना? तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि खुदावंद बाप की उनके ऊपर मोहर जो थी वो हुई थी, है ना? लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि किसकी उनके माथों पे किसका नाम लिखा है? बर्रे का और बाप का, यानी दोनों का नाम लिखा हुआ है। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं और खुदावंद बाप पे, खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस पे, है ना? तो जबकि जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन थे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जैसे कह लें कि उन वो उसको मसीहा नहीं मानते थे। तो इसलिए उनकी मोहर जो थी अ, खुदावंद यीशु मसीह की जो मोहर है कह लें,
या खुदावंद यीशु मसीह का नाम उनके माथों पे नहीं लिखा हुआ था, है ना? तो इसलिए यहाँ पे वो लोग हैं जिनके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह का नाम भी लिखा हुआ है और खुदावंद बाप का भी नाम लिखा हुआ है। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो सहून पे खुदावंद यीशु मसीह के साथ खड़े हैं, जिनके ऊपर जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं और हमने उनके बारे में जो हवाले थे वो पढ़े थे और वो बहुत ही ज़बरदस्त आयतें थी। हम उनमें से 2 जो आयतें हैं वो पढ़ेंगे कि जिनके माथे पे खुदावंद यीशु मसीह का, खुदावंद बाप का नाम लिखा हुआ था, तो ये वो लोग हैं। और हमने सीखा कि खुदावंद के खादम जो क्या हैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस वफादारी से चल रहे हैं, जो खुदावंद ने उनको चुना ताकि अपनी दुल्हन को खुदावंद उनके ज़रिए तैयार करवाए, ऐसे खादमों को, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को चुना था। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा कि क्या तू इन सब में से ज़्यादा मुझे प्यार करता है? यानी शागिर्दों में से ये हवाला मेरहल हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने देखे जो हमारे कह लें इर्द-गिर्द लोग हैं या हम सर जैसे लोग हैं, खुदावंद चाहता है कि हम उनसे भी ज़्यादा अगर खुदावंद को प्यार करते हैं, तो खुदावंद हमें खिदमत के लिए चुनता है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि क्या तू इन सब में से ज़्यादा मुझे मोहब्बत करता है? तो पतरस ने कहा, हाँ खुदावंद तू तो जानता ही है कि मैं तुझे ज़्यादा इनसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो खुदावंद ने फिर उसको कहा था कि मेरी भेड़ें चरा। तो इसलिए उस किस्म के जो खुदावंद के खादम हैं, जो अ ये हवाले तब हमने पढ़े थे कि जिन्होंने क्या किया है, अपना सब कुछ खुदावंद के लिए छोड़ दिया है। बीवी, बच्चों और मालो-दौलत सबसे ज़्यादा क्या है, वो खुदावंद को मोहब्बत करते हैं। तो यानी वो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा नहीं करते, इसलिए उनको कवारे कहा गया है। और अगर वो शादीशुदा भी हैं, यानी जैसे पालुस रसूल ने एक जगह कहा कि जो शादीशुदा हैं वो इस तरह रहें जैसे कि वो बेब्याहे हैं, यानी उनकी शादी नहीं हुई। यानी इसका मतलब है कि वो इस तरह से खुदावंद से मोहब्बत करें कि अपनी बीवी बच्चों से ज़्यादा जो खुदावंद को मोहब्बत करते हैं और मालो दौलत से, अपने जिस्म से ज़्यादा अ, यानी जो अपनी जान को अज़ीज़ नहीं रखते। और एक जगह पालूस रसूल ने कहा कि तुम्हारी खातिर अगर मुझे खून भी अ यानी मेरा खून भी बह जाए, तो तब भी मैं तुमको नहीं छोड़ूँगा और तुम्हारी फ़िक्र करूँगा या तुम्हारी जो भी गलाबानी है वो करेगा। तो इस तरह से खुदावंद के खादम जो खुद भी तैयार हो रहे हैं और कलीसिया को भी तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे लोग ये जो सहून में खड़े हैं, जो खुदावंद के खादम हैं, जिनके माथों पे क्या है? खुदावंद का नाम लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है। तो हम ये 2 हवाले पढ़ के फिर ये अभी पिछला ही हम एक किस्म की रवियन जो है वो ही कर रहे हैं कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये जिनकी बात जो है जो सहून में खुदावंद यीशु मसीह के साथ खड़े हैं, ये किस तरह के लोग हैं? इनको क्यों ब्याहे कहा गया या ये औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए, है ना? या ये खुदावंद का गीत गा रहे हैं या ये जो गीत है और कोई नहीं सीख सका, है ना? तो या ये जो है दूसरों से अलग क्यों है, दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है ना? तो ये हम 2 हवाले पढ़ेंगे और फिर इसके आगे जो हम हैं वो थोड़ी सीखेंगे, बात करेंगे। जी, हमारे साथ सबा है महल रीडिंग में और सोनिया है ना? तो हम जी नंदी। हम जो
मुकाशवा 14 बाब उसकी महल 5 आयत तक के दोबारा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लूका 14 बाब उसकी 26 आयत से 33 आयत तक पढ़ेंगे। मुकाशवा 14 बाब उसकी पहली आयत से आप 5 आयत तक पढ़ें। पढ़ू नीवा जी? हाँ जी, फिर हम बात करेंगे। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बरा सहून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स है जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज थी। और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए, बल्कि कवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। ये खुदा और बर्रा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वो बेऐब है। आमीन। आमीन। जी सोनिया, आप पढ़ेंगी? सोनिया है हमारे साथ? सिस्टर जी मेरे होने कोई और पढ़ सकता प्लीज? ओके, ठीक है, कोई बात जी। अंजना, आप पढ़ सकती हैं? अंजना है हमारे साथ? चलिए ठीक है। क्या कहते हैं, सबा आप भी उर्दू में दोबारा पढ़ें इसको। लूका की इंजील उसका 14 बाब जी, एक सेकेंड। और 26 आयत से आप पढ़ना, जिसमें हमें पता चलता है कि ये लूका 14 बाब उसकी 26 आयत, 14 बाब 26 आयत से 33 आयत तक। जी जी। अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, बल्कि तू मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर लेगा कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील न कर सका। ये कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। नहीं तो मैं, जब वो हनूज दूर ही है, एलची भेजकर शरायत सुलह की दरखास्त करेगा। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजेदार किया जाएगा। ना वो जमीन के काम कर रहा, ना खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले। आमीन। आमीन, है ना? तो ये किस तरह के खुदावंद यीशु मसीह के कहलें शागिर्द हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ क्या किया था, खुदावंद के लिए तर्क कर दिया था, है ना? सब कुछ छोड़ छाड़ के वो खुदावंद के पीछे चल पड़े थे। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, है ना? वो अपनी बीवी बच्चों को, जैसा कि पतरस के बारे में हमें पता चलता है कि वो शादीशुदा था, है ना? और उसने सब कुछ छोड़ के, अपना जो भी कह लें माल उसबाब था, सब कुछ छोड़ के, जिस्मानी कामों को छोड़ के खुदा उनके पीछे हो गए थे।
तो इस तरह के जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, जो अब भी हैं, है ना? ये ज़रूरी नहीं कि तब भी थे, कुछ लोग समझते हैं कि शायद इस तरह अब तो नहीं हो सकता या तब, लेकिन खुदावंद के इस तरह के शागिर्द जो हैं, अब भी दुनिया में हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं। इसीलिए सहून के लोग जो हैं, वो बहुत थोड़े होंगे। ये गिनती की हुई है, इसीलिए देखें, है ना? कि 1 लाख वो 44,000 हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह के जो खुदा के खादम हैं जो दुल्हन को तैयार कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया हुआ है, सब कुछ तर्क किया हुआ, सब कुछ खत्म किया हुआ है। वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। जब उन्होंने चलना, यानी ये जो एक तमसील के ज़रिए खुदावंद ने हमें समझाने की, जैसे कह लें, कोशिश की कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो जंग के लिए जा रहे हैं तो उनके पास इतना है या नहीं। उन्होंने कुछ भी इसके बारे में नहीं उन्होंने सब कुछ अपना जो है वो खुदावंद के हाथों में दे दिया, अपना मालो-सबाब और अपनी ज़िंदगियाँ, बल्कि अपने बदनों को, जैसे कह लें, ऐसी कुर्बान होने के लिए दे दिए। अपनी जानों को भी उन्होंने अज़ीज़ नहीं रखा। अपनी जान से ज़्यादा और क्या चीज़ मैं कहूँगी कि दुनिया में कीमती होती है ना? तो उन्होंने वो भी जानें भी जो थी अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए कुर्बान होने के लिए कह लें कि दी थी। तो इस तरह के जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, इस तरह जो ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं या जिन्होंने गुज़ारी, ये उन शागिर्दों की बात हो रही है या उन लोगों की बात हो रही है। इस तरह से जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। तो वो कह लें कि उस दुल्हन को जो है वो तैयार कर रहे हैं, है ना? और उनके ऊपर उनके माथों पे क्या लिखा हुआ है? खुदावंद का नाम और खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो है वो लिखा हुआ है। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, अ, यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब और उसकी 15 आयत से आप 17 आयत तक पढ़ना। यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब, यूहन्ना की इंजील 15 21 बाब, बाब, अच्छा 21 21 बाब, उसकी 15 आयत। यूहन्ना की और इंजील जब 21 बाब। हाँ जी, पढ़ो। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बरा तू मेरे बरे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ए शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, है हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ए शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ए खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। हाँ जी। यीशु तो ने उससे कहा, ठीक है, हाँ, सब पढ़ूं? बस, हाँ, बस ठीक है कि इस तरह के जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, जो अम, खुदावंद को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ रखते हैं, अपने कह लो फैमिली से, अपने बीवी-बच्चों से, खुदावंद जो है उनको इस किस्म के जो लोग हैं, खुदावंद ने चुना है अपनी दुल्हन को तैयार करने के लिए। तो जो खुदा के खादम इस तरह की खिदमत कर रहे हैं, अम, और दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, वो ये लोग हैं, सहून के जो हैं वो ये लोग हैं। और जिनको ये तैयार करेंगे, यानी जो दुल्हन है, वो भी इसी तरह की होगी जिस तरह के अभी हमने जो लूका की इंजील में पढ़ा कि इस तरह के जो सब कुछ अपना तर्क करके आ गए, अपनी जानों को भी उन्होंने अजीज नहीं रखा, है ना?
तो वो जो दुल्हन होगी वो भी इसी तरह की होगी, बिल्कुल जैसे ये सहून के लोग हैं, यानी जैसे ये खुदा यीशु मसीह ने पतरस को चुना कि क्या तू मुझे सबसे अजीज रखता है ना? तो जिनको आगे ये तैयार करेंगे वो भी इसी तरह के लोग होंगे। इसलिए दुल्हन और जो सहून के लोग हैं, जो यानी उस्ताद हैं, वो उसी तरह के होंगे, एक जैसे होंगे। जिस तरह के हम यूहन्ना की इंजील में ही आगे चल के हम एक और हवाला पढ़ेंगे कि बाप मुझ में है, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा, है ना? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और वो क्या है? एक रूह में बंधे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह जो दुल्हन है, जो सहून के लोग हैं और वो क्या हैं? खुदावंद यीशु मसीह में, खुदावंद बाप में, खुदावंद पाक रूह में एक रूह में कह लें कि बंधे हुए हैं। इसलिए ये एक जैसे होंगे, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने रोमियो के मेरे ख्याल उसमें खत में लिखा हुआ है कि जो मसीह की तरह है ना? जो खुदावंद उन लोगों को लेने आ रहा है। तो इसलिए ये क्या है? सब एक रूह में बंधे होंगे, यानी सहून के, खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन, खुदावंद बाप, खुदावंद बेटा एक ही तरह के होंगे, या एक यानी उनकी रूह जो है, यानी खुदावंद पाक रूह उनके अंदर काम कर रही होगी, और वो क्या है? इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करते होंगे कि वो अपनी जानों को भी अजीज नहीं समझेंगे, अपना सब कुछ खुदावंद के लिए तर्क करने के लिए, खत्म करने के लिए हर वक्त तैयार जो है वो रहते हैं, और अपनी जिस्म की जो ख्वाहिशें हैं, दुनिया की जो कह लें रंगीनियां हैं, लज्जतें हैं, है ना? उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। वो क्या है? सिर्फ उनकी आंखें जो हैं खुदावंद की तरफ लगी रहती हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, ये उनकी बात हो रही है। खुदावंद ऐसे लोगों को चुनता है, जैसे कि पतरस को खुदावंद ने चुना कि मेरी भेड़ें को चरा, है ना? तो इस तरह के खुदा के खादम जिनको खुदावंद ने चुना है, और वो ऐसी जो खुदावंद के लोग हैं या खुदावंद की दुल्हन को तैयार करे हैं, तो ये दोनों क्या हैं? एक रूह में बंधे होंगे। तो ये वो लोग हैं। तो इसलिए ये जो 1,44,000 जो लोग हैं, वो जो जिनके माथे पे खुदावंद बाप की मोहर लगी थी, ये वो लोग नहीं हैं, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, है ना? ये सहून पे जो खड़े हैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ, वो खुदावंद यीशु मसीह ही की तरह हैं, है ना? ये खुदावंद यीशु मसीह की जो यानी ये जो बर्रे के साथ खड़े हैं, तो वो बड़े की ही तरह के लोग हैं, है ना? जो कि क्या हैं? उन्होंने खुदा की तमाम मर्ज़ी को पूरा किया था, और उन्होंने फ़तेहमंद जो ज़िंदगी थी, वो गुज़ारी थी, और इसलिए वो सहून में खड़े हैं, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो भी क्या हैं? फ़तेहमंद हैं। तो इसलिए ये खुदावंद यीशु मसीह के वो वाले लोग हैं अ जो खुदावंद यीशु मसीह की तरह हैं। तो इसलिए ये 1,44,000 लोग हैं, और ये पाकीज़गी में चलने वाले लोग हैं, और ये अम, क्योंकि ऐसी पाकीज़गी जो है, जो नए अहदनामे में जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से हम लोगों को मिली है, ये पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन थे, उनके पास नहीं था। उनके पास बर्रे का लहू था, यानी कि जो अ, बछड़ा है या बैल है ना? या बछिया जो है, उनका खून था। लेकिन हमारे पास ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह का लहू है, जो हमें पाक और साफ करता है। तो इसलिए उनके ऊपर जो ऐसे भेद भी नहीं खुले थे, जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, और मुकाशफे ऐसे नहीं खुले थे, और ना ही उनके पास खुदावंद यीशु मसीह का लहू था, जो कुदरत वाला, जो ताकत वाला लहू है, उसके वसीला से अब हम पाक और साफ हो रहे हैं। तो इसलिए वो जिन पे खुदा बाप की मोहर लगी थी, वो खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग नहीं थे। तो इसलिए ये वो लोग नहीं हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह के ऐसे वाले खुदा के खादम हैं, जो उसकी भेड़ों को चरा रहे हैं।
और इनके ऊपर खुदावंद की भी मोहर लगी हुई है और खुदावंद यीशु मसीह की भी मोहर लगी हुई है। तो इसलिए ये उनकी जो बात है वो हो रही है। तो उन लोगों को सिर्फ जो था उन पे मोहर सिर्फ इसलिए लगी थी कि वो मुसीबतों का जो दौर था उसमें से उनको खुदावंद ने बचाना था ताकि वो 1000 साला बादशाही में दाखिल हो जाएं। तो वो 1/3 लोग जो थे यानी 1,44,000 वो लोग जो थे इस्राएली कौम में से चुने गए थे, हर कबीले में से। तो वो लोग थे जिनके ऊपर खुदा बाप की मोहर लगी थी, है ना? तो ये ज़रूर एक एक अलग-अलग जैसे कह लें इनको याद रखना है कि इनके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह की और खुदावंद बाप की मोहर लगी हुई है ना? और फिर ये लोग जो थे ये ही क्यों नया गीत गा रहे थे और बरबत जो थे वो बजा रहे थे। ये जो हम इस आयत में पढ़ते हैं कि वो गीत गा रहे हैं और आसमान से जो आवाज आई है ना? तो इसका मतलब है कि ये जो बरबत है, जो बजा रहे हैं और जो गीत ये गा रहे हैं, वो और लोग क्यों नहीं सीख सके थे? वो और लोगों को जो बाकी के हैं वो क्यों नहीं गा रहे? यही सिर्फ गीत क्यों गा रहे हैं जो तीसरी आयत में है मेरा ख्याल, है ना? कि आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज थी और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बचाते हैं। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों के और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे कोई उस गीत को ना सीख सका। हाँ जी, तो ये जो चारों जानदार थे और जो 24 बुजुर्ग थे, है ना? ये वो भी ये वाला गीत जो थे, ये वाला वो नहीं सीख सके या वो नहीं गा रहे। ये गीत जो है वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया नया गीत गा रहे हैं। तो ये नया जो गीत था, ये सिर्फ यही लोग गा रहे थे। वो जो जानदारों के बारे में हमने सीखा था कि ये पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं और जो 24 बुजुर्ग थे जो हमने पीछे सीखा था कि वो बैठे हुए हैं तख्तों के ऊपर। वो भी हमने देखा कि वो कौन से हैं लोग हैं कि जो शरीयत से पहले के लोग हमारे मुकद्दसीन हैं, है ना? जो मूसा की शरीयत से पहले के मुकद्दसीन थे जैसे बाप इब्राहिम और क्या थे आदम से लेके कह लें कि जो दिल की शरीयत के मुताबिक जिन्होंने जिंदगियां गुजारी थी जैसे नूह था, है ना? हनूक था, यानी दिल की शरीयत के मुताबिक जिन्होंने जिंदगियां गुजारी थी। अभी शरीयत जो है खुदावंद ने जो कोहे सीना पे शरीयत दी थी उससे पहले के जो मुकद्दसीन हैं ये बुजुर्ग जो हैं ये वो लोग हैं। तो वो भी ये गीत नहीं सीख सके। ये सिर्फ गीत कौन सीख सके जो सहून पे खड़े हैं, जो खुदा यीशु मसीह के साथ हैं। तो ये बरबत का जो मीनिंग है जो कह लें सितार है, जिस सितार या ये साज जो हैं इस तरह का जैसे कह लें का म्यूजिक है या गिटार या जो तारों के साथ जैसे कह लें तार धार साज इस तरह का कह लें कि एक म्यूजिक कह लें। तो खुदावंद ने एक किस्म का कह लें कि तशबीह के तौर पे या इस तरह उसको जोड़ा है कि और कोई यानी बरबत की आवाज जो थी वो आई। तो ये जो अगर किसी ने बजाया है या म्यूजिक के साथ किसी को थोड़ा-सा लगाव है, तो वो जानता है कि इसकी एक-एक तार जो होती है, ये जो सितार है जो बजाता है दाऊद यही बजाता था। तो इसकी एक-एक तार को है जो कह लें कि ट्यून करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है ना?
जो भी ये बजाता है या जिसने देखा हुआ है या गिटार, आपको पता ही होगा कि वो उसकी अ, जब भी गीत गाना हो या जब भी उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो सुर है या उसके ये तारें जो हैं उसको फिक्स करना पड़ता है। ये शायद आपको नजर आ रहा हो, ऊपर इसको थोड़ा जैसे कसने के लिए, उसको टाइट करने के लिए ये एक वो लगा हुआ है, आला सा लगा हुआ है ना? तो इसको जब तक ये जो भी सितार है या परपत है या ये गिटार है जैसे, तो जब तक उसको ट्यून ना कर लें, जब तक उसको फिक्स ना कर लें, उसमें से अगर उसको फिक्स ना किया हो, उसको ट्यून ना किया हो, तो उसमें से बड़ी ऐसी आवाज़ निकलती है जो हमारे कानों को बड़ी भद्दी कह लें या लगती है, नागवार गुज़रती है ना? तो इसलिए जब भी गीत गाना हो, जब भी इसको बजाना हो, तो उसको पहले ट्यून किया जाता है, पहले फिक्स किया जाता है, पहले कह लें कसा जाता है और एक-एक तार को जैसे कह लें ट्यून किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कह लें कि खुदावंद ने ये जो खुदा के खादम हैं या खुदावंद के जो बंदे हैं, जो भी ये गीत गा रहे हैं, खुदावंद ने पहले इनको इनकी ज़िंदगियों को कह लें जैसे कह लें ट्यून किया है, पहले फिक्स किया है ताकि इनके अंदर से जो आवाज़ निकले या फिर इस तरह हम एक कह सकते हैं कि जब तक इन्होंने अपनी रूह, बदन और जान को खुदावंद के हवाले नहीं किया, है ना? तब तक खुदावंद ने इनको इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया। एक-एक तार जो है या एक-एक हमारा जो इसको इससे भी तशबीह दी गई है कि जैसे अ, कोई भी खुदावंद का हुक्म है वो या खुदावंद की जो शरीयत है, मतलब जो आईन है, जो कानून खुदावंद ने बनाए हैं, जैसे-जैसे हम उनको उन पे अमल करते जाते हैं, तो एक-एक तार जैसे-जैसे कह लें वो खुदावंद के साथ हमारी जुड़ती जाती है। जैसे-जैसे खुदावंद के हुक्मों पे हम अमल करते जाते हैं, तो हमारे अंदर से जैसे कह लें उसकी आवाज़ जो है वो आना शुरू हो जाती है। हमारे सुर जो हैं खुदावंद के साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। हम एक रूह में बंधना शुरू हो जाते हैं। तो ये तब तक नहीं हो सकता, खुदावंद ऐसे लोगों को कह लें इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो खुदावंद के साथ एक रूह में नहीं बंधते। इसलिए ये एक-एक तार जो है यानी एक-एक शरीयत की जो किताब है या आईन है, उसके हुक्म हैं जो है, जैसे-जैसे हम उस पे अमल करते जाते हैं, हमारी तारे जो हैं कह लें खुदावंद के साथ मिलना शुरू हो जाती हैं। तो जब तक हमारी ज़िंदगी जो है, कोई भी खुदावंद का खादम है, कोई भी है ज़िंदगी जो है खुदावंद के साथ जुड़ी हुई नहीं होगी, हमारा रूह, बदन, जान खुदावंद में पेवस्त नहीं हुआ होगा, जुड़ा नहीं होगा, तब तक हमारी जो खिदमत है, यानी ये वाले जो खुदा के खादम हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, है ना? उनकी खिदमत में जो है वो एक जैसे कह लें कि बढ़ोतरी नहीं आएगी। उनकी खिदमत में वो जो जलाल है खुदावंद का वो नज़र नहीं आएगा। जब तक ये खुदावंद की एक ये जैसे ये जो साज़ है ना? ये एक किस्म का कह लें हमें पेश करता है और हम खुदावंद के साथ या ये वो खुदा के खादम हैं, है ना? जो खुदावंद के हाथों में अपनी ज़िंदगियाँ जब तक नहीं देते क्योंकि ये या ये सारे सुर जो हैं हमारे, वो कौन सीधे करेगा, कौन इनको कि जब भी हम बोलें, हमारे आवाज़ निकले हमारे गलों से या हम गीत गाएँ, तो आवाज़ कहाँ से आएगी या सुर ताल कहाँ से अ, जिसमें मिठास पैदा होगी, जिसमें असर पैदा होगा, वो जब तक हमारे सुर खुदावंद के साथ मिले नहीं होंगे, तब तक हमारी ज़िंदगियों से जो रूहें
हम बचाते हैं, या रूहों को जैसे कि एक उस्ताद की तरह, माहिर उस्ताद की तरह जो कुछ सिखा रहे हैं, वो खुदावंद के साथ हमारा मैच नहीं करता, तब तक हमारी खिदमत से, या जो भी ये खुदा के खादिम हैं, हम तो उनके साथ नहीं, लेकिन जिनको भी खुदावंद ने इस तरह खिदमत के लिए चुना है, जिन्होंने सब कुछ तर्क किया हुआ है, सब कुछ छोड़ा हुआ है खुदावंद के लिए, तो तब उनकी सुर ताल जो है वो खुदावंद के साथ मिली हुई है। तो इसलिए जब वो खिदमत करेंगे, तो उनकी खिदमत से बहुत सी जो ऐसी ही ऐसे ही लोग जो हैं वो तैयार होंगे। जैसे पौलुस रसूल जो था, उसकी खिदमत से दोलन जो थी तैयार हो रही। जैसे पतरस ने जब खिदमत शुरू की, या बाकी के भी खुदा यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, जो सब कुछ छोड़ के आए थे, तो उनकी जिंदगी से क्या थे वो खूबसूरत, वो क्या कह लें, दिल कश जो एक आवाजें थी या नगमे जो थे वो बन रहे थे, है ना? तो इसलिए ये नगमा असल में क्या है, या गीत जो है ये क्या है असल में, जब भी हम खुदावंद की शरीयत पे, खुदावंद के हुक्मों पे अमल करते हैं, और हमारे सुर और ताल जो हैं खुदावंद के साथ मिल जाती हैं, तो इसलिए वो लोग ये गीत जो है वो गा सकते हैं। बाकी लोग जो हैं वो गीत ये नहीं गा सकते। तो इसलिए जो सहून के लोग हैं, वो ये गीत, या वो खुदा के खादम जो हैं, सिर्फ वही ये गीत गा सके, क्योंकि वो इस तरह से जिंदगियां, जैसे हमने वो लूका की इंजील में पढ़ा कि लूका और वो यूहन्ना की इंजील में, है ना, कि वो जो सब कुछ अपना बीवी बच्चे माल और स्वाब और अपने बल्कि जिस्म को भी, उन्होंने बदन को भी क्या करा, खुदावन से ज्यादा अजीज रखा, और अपने बदन को भी उन्होंने अजीज ना रखा, सॉरी यानी खुदावन को ज्यादा अजीज रखा, है ना? तो ये वो लोग जो हैं, ये वो ही सिर्फ गीत सीखे, क्योंकि क्या था, जैसे जैसे वो शरीयत पे अमल करते जाते हैं, जैसे जैसे हुक्म पे अमल करते जाते हैं, तो वो है एक नया गीत, वो है एक नया जो ये सिर्फ गा सके, बाकी लोग क्यों ना ये गीत गा सके। और इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं, है ना? तो ये वो लोग हैं जो नई जमीन पे और नए आसमान पे जो लोग हैं, यानी उनसे इन्होंने सबकत हासिल की, ये उनसे बढ़कर थे। बाकी जो नई जमीन के लोग हैं और नए आसमान के लोग हैं, यानी जो जिनकी सिर्फ रूहें बची हैं, या जो शहीद होंगे, या जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, उन पे इनको बर्तरी क्यों हासिल है, उन पे इनको फौकियत क्यों हासिल है, क्योंकि ये क्या थे, इन्होंने सारे शरीयत पे, सारे खुदा के हुक्मों पे अमल किया, और खुदावंद के साथ इस तरह पीछे पीछे चलते रहे। पीछे पीछे चलने का मतलब क्या है, कि हर स्टेप, हर बात जो खुदावंद ने कही है, उस पे वो अमल कर रहे थे। हर तार जो था उनका खुदावंद के साथ जुड़ा हुआ था, है ना? आपने कभी देखा होगा कि अम, कई दफा बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, मैं मसीहियों की बात कर रही हूँ, है ना? और कई दफा वो अपने ही नाम को जलाल देने के लिए जब गा रहे होते हैं, तो उन जब गीत गा रहे हैं तो मसा नहीं होता। गीत गाते हैं तो जैसे कह लें जिंदगियां तब्दील नहीं होती, ना उनकी खुद, ना वो जब कलीसिया में, चर्च में या गा रहे हैं। लेकिन जब उनकी तार जो है, सुर ताल जो हैं वो खुदावंद के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो जब गीत गाते हैं तो जिंदगियां तब्दील होना चाहिए, लोग गीतों के जरिए शफा पाना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये वो लोग हैं जिनकी सुर जो थी खुदावंद के साथ जुड़ी थी, जिनकी तारें जो थी कह लें खुदावंद के साथ जुड़ी हुई थी, और उनकी जिंदगी से वो तसलीस पे यानी ईमान रखते थे, रूह बदन और जान, यानी खुदाम पाक रूह, खुदाम बाप, खुदाम यीशु मसीह पे वो ईमान रखने वाले लोग थे। उनकी रफाकत जो थी उनके साथ थी, और बल्कि उनके साथ ही नहीं थी, बल्कि जो अपने हम खिदमत होते हैं, खुदा के खादम, आपस में भी उनकी क्या थी, ये गानगत थी। वो एक जैसे कह ले रूह में बंधे हुए थे, वो उनमें तफरके नहीं थे, लड़ाई झगड़े नहीं थे। यानी उनकी खिदमत में जैसे पास्टर्स होते हैं, तो उनकी आपस में भी एक कह लें उस तरह की मोहब्बत थी कि वो आपस में भी
उनके लड़ाई झगड़े जो थे या तफरके जो थे वो नहीं थे। तो इस तरह के लोग, ये नहीं कि खुदाम के साथ कई दफा बड़ा होता है, लेकिन हमारी आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इस तरह के खुदाम के लोग जो जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, यानी ये खुदा के खादम जहाँ जिस चर्च में हैं या जहाँ पे भी ये हैं, तो इनकी आपस में रफ़ाकत होती है, आपस में यूनाइट होते हैं, प्यार, मोहब्बत, सुलह सलामती इनके अंदर होती है। तो इस तरह के लोग जो हैं, उनकी ये बात हो रही है, वो ये गीत सीख सके और बाकी लोग जो हैं, वो गीत ये ना सीख सके। ठीक है? तो गीतों का ये जो क्या लें, हमें बाइबल में हवाले 1-2 मिलते हैं, वो हम पढ़ते हैं। इस्तिशना की किताब सब आप निकालना, उसका 31 बाब उसकी 30 आयत में भी जो मूसा का गीत गा रहे थे। जी, है सबा है हमारे साथ? सबा इस्तिशना 31 बाब जी ननीबा जी, 1 मिनट 31 में निकाल रही हूँ। इस्तिशना की किताब उसका 31 बाब और उसकी जो कह लें कि लास्ट जो आयत है, जिसमें वो क्या थे, मूसा का गीत गा रहे थे। जी वो तो लास्ट में 32 बाब से नीचे मूसा का गीत है। हाँ, 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 हाँ। 32 चैप्टर पे पढ़ो। नहीं, आपने सिर्फ आयत वो पढ़नी है कि वो क्या कौन सा गीत गा रहे थे? मूसा का गीत गा रहे थे। सो मूसा ने इस गीत की बातें इसराइल की सारी जमात को आखिर तक कह सुनाई। ये हाँ लिखे है जी, उसके ऊपर। हाँ, तो ये लोग मूसा का गीत गा रहे थे और जो क्या कहते हैं, जो शरीयत थी या जो खुदावंद ने उसके साथ बातें की थी या हुक्म दिए थे, वो किसके ज़रिए इस्राएली कौम पे पहुँचे थे, इस्राएल कौम के पास मूसा के ज़रिए पहुँचे थे। तो इसलिए वो किसका गीत गा रहे थे? मूसा का गीत गा रहे थे। यानी मूसा के ज़रिए खुदावंद ने उनसे बातचीत जो थी वो की थी अ, बनी इस्राएल कौम के साथ, है ना? तो इसलिए वो किसका गीत गा रहे थे? वो मूसा का गीत गा रहे थे। मूसा के ज़रिए जो शरीयत जो थी उन तक पहुँची थी। तो शरीयत यानी क्या कहते हैं, जो हुक्म थे खुदावंद ने दिए, तो वो इसलिए उसका गीत गा रहे थे। मतलब क्या है कि वो जो हुक्म थे, जो खुदावंद ने मूसा को दिए थे बनी इस्राइल को पूरा करने के लिए, ये कि इन सारे हुक्मों पे क्या करना? अमल करना। तो इसलिए जो उस वक़्त या मूसा जो था उन हुक्मों पे अमल कर रहा था, इसलिए वो गीत गा रहे थे। तो यानी शरीयत को पूरा करना क्या है? हुक्मों पे वो गीत गाना है। यानी शरीयत को जो पूरा कर रहा है, वो असल में क्या कर रहा है? वो गीत गा रहा है, वो नया गीत जो है, वो गा रहे हैं। यानी खुदावंद के हुक्मों को पूरा करना क्या इसका मतलब है? पता नहीं मैं सही तरीके से समझा रही हूँ आपको समझ में कि जो भी खुदा उनके हुक्मों को पूरा करता है वो असल में गीत गा रहा है, वो एक नया गीत गा रहा है। तो जैसे-जैसे हम खुदा उनके हुक्मों को पूरा करते जाते हैं, वो शरीयत को पूरा करते जाते हैं, जो आइन है, तो वो असल में हम गीत गा रहे हैं। वो गीत गा रहे हैं जो हमारे इर्द-गिर्द के बाकी लोग जो हैं वो नहीं सीखते थे क्योंकि हम मैंने सीखा है फ़र्ज़ करें या आपने सीखा है कि खुदावंद ने मुझे ये हुक्म दिया है कि क्या करना, चोरी ना करना, ज़िना ना करना, है ना? ये सारे क्या थे? हुक्म दिए थे खुदावंद ने मूसा के ज़रिए। तो इसलिए ये लोग कौन है ये लोग किसके हुक्मों पे अमल कर रहे हैं? खुदावंद के, लेकिन मूसा के ज़रिए वो इन तक पहुँचा। तो जैसे-जैसे ये हुक्मों पे अमल करते जाएँगे तो वो क्या है? एक नया गीत गा रहे हैं, जो कि बाकी जो कौमें थी वो ये गीत नहीं गा सकती थी, नहीं सीख सकती थी। फिर हम एक और हवाला पढ़ते हैं ज़बूर 40 उसकी 3 आयत। ज़बूर 40 जी, सबा हैं हमारे साथ। जी जी ज़बूर 40 उसकी 3 आयत। जी। उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत
मेरे मुंह में डाला। बथेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावन पर तवक्कल करेंगे। आमीन। हाँ जी, तो ये गीत गाना क्या है? उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। यानी जब हम खुदा के हुक्मों पे अमल करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसको खुदावंद को हमारे ज़रिए से क्या है क्या करें, हमारे ज़रिए से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल रहा है, तो असल में हम नया गीत गा रहे हैं। ये है नया गीत। उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुँह में डाला। यानी वो क्या कर रहा है? सताइश कर रहा है। हम्दो सना कर रहा है या खुदावंद के नाम को ऊँचा कर रहा है। तो ये क्या है? नया गीत है। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, ज़बूर 137 उसकी 4 आयत। यानी ये आपको समझ लगे कि ये नया गीत असल में क्या है। हम परदेश में खुदावन का गीत कैसे गाएं? हाँ, ये जब लोग वो कैद में चले गए थे और वो इसराइली, तो उन्होंने जो बरबत थी, ये देखें शायद आपको छोटा-सा दरख्त पे नज़र आए, तो उन्होंने टंगा दिया था, क्योंकि उनके मुँह से सताइश नहीं निकल रही थी जब बाइबल में उसको उनको कैदी बना के या उनको ले गए थे गैर कौमें, तो उनके मुँह से सताइश नहीं निकल रही थी, खुदा उनके हम्दो सना नहीं निकल रही थी, खुदा उनके उस तरह से खुदा के साथ वो नहीं चल रहे थे, तो इसलिए उनके मुँह से वो गीत भी नहीं निकल रहा था। तो जब हम इस तरह कहीं कई दफ़ा गिर जाते हैं, फँस जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो फिर हम असल में खुदा की तारीफ़ नहीं कर रहे, तो खुदा के हुक्मों पे अमल नहीं कर रहे होते, तो इसलिए वो लोग गीत भी नहीं गा सकते। उनके मुँह से खुदा की सताइश भी नहीं निकल सकती, जो कि जैसे कह लें कैद में होते हैं, जो कि जैसे अब हम रूहानी तौर पे यही सीख रहे हैं कि जब हम दुश्मन की कैद में होते हैं, यानी किसी भी तरह के नशे में फँसे हुए हैं, झूठ में फँसे हुए हैं, तो क्या है हमने ये सीखा कि ये क्या है, हम कैद में हैं, शैतान की कैद में हैं। तो हमारे मुँह से फिर वो शुक्रगुज़ारी, वो खुदा के जो हम्दो सना है, सताइश है, तारीफ़ है, वो नहीं निकलती। हम खुदा उनके हुक्मों पे उस तरह से अमल भी नहीं कर रहे होते। हम उस वक़्त पीछे हट जाते हैं या गिर जाते हैं। जिस तरह इन्होंने इस्राएली कौम जो थी, वो खुदावंद से दूर चली गई थी और कैद में थे। जब ये बाबल के उसकी कैद में चले गए थे, तब की ये बात हो रही है ना? तो इसलिए इन्होंने गीत नहीं गाया। उन्होंने वो उदास बैठे हुए हैं और इसलिए उन्होंने गीत नहीं गाया। तो इसलिए जैसे-जैसे हम खुदा उनकी सताइश करते हैं, हमदो-सना में आगे बढ़ते जाते हैं या खुदा उनके हुक्मों पे शरीयत पे अमल करते जाते हैं, तो वो नया गीत हम सीखते जाते हैं। अम, और मुकाशफा 15 बाब उसकी 3 आयत भी पढ़ना सबा। जी। और वो खुदा मुकाश के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, ए खुदावंद खुदा कादर मुतलक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ए असली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। हाँ जी, बस ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मूसा की शरीयत पर अमल करने वाले पुराने अहदनामे के हमारे मुकद्दसीन हैं, वो भी गीत गा रहे हैं, लेकिन वो मूसा का गीत गा रहे हैं। वो जितनी शरीयत उनके पास थी, जितने कह लें हुक्म जो थे उनके पास थे, अ, तो वो उसका गीत गा रहे हैं। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, वो फिर किसका गीत गा रहे हैं? वो बर्रे का गीत गा रहे हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे आके कह लें, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने आके जो गहरे मुकाशफे खोले, गहरे भेद खोले, रूहानी तौर पे हमारे जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उनके ज़रिए जो हमें एक जो गहरे भेद जो थे कि किस तरह हमें तैयार होना है, कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें हुक्म दिए हैं, जैसे
पाकरू का बपतिस्मा जो है जैसे कह लें वो हमें नए अहदनामे में मिलता है। पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं, है ना? उनके पास ये 7 रूहें जो थी जो हमें तैयार कर रही हैं, वो उनके पास नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे जो हैं, तो वो उनके पास नहीं थे ये। लेकिन अब जो हैं हम नए अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पाकरू का बपतिस्मा है ना? और हम क्या हैं उस तरह से पाक हो रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें हुक्म दिए हैं उनको पूरा करें। तो इसलिए ये वो खुदा के खादम हैं या उस तरह से ये पाक हो रहे हैं जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह ने अभी हमें जो नए अहदनामे में तालीम जो है दी है, या जो मोहब्बत की तालीम है कह लें कि वो दी है, नया हुक्म जो है कि हम क्या करें, सबसे दुश्मनों से भी मोहब्बत करें। जबकि पुराने अहदनामे में हमें ये वाली एक जैसे कह लें कि हुक्म जो है या तालीम जो है वो नहीं मिली, स्टडी जो है वो नहीं मिलती, बल्कि वहाँ पे हमें मिलता है कि जी ईंट का पत्थर का जवाब ईंट से, है ना? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करो, है ना? तो अगर हम इस तरह जो खुदावंद यीशु मसीह ने आके हमें हुक्म दिए हैं या शरीयत दी है या आइन जो है सिखाए हैं, तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के जो गीत गा रहे हैं लोग, वो क्या हैं? उनकी आपस में भी मोहब्बत, एक तो उनकी खुदा के साथ मोहब्बत, एक जो खुदा के खादम आपस में या कलीसी आपस में या चर्च आपस में जो लोग हैं, उनकी भी आपस में मोहब्बत जो है वो बहुत ज़रूरी है ना? तो इसलिए ये वो लोग हैं जो बर्रे का गीत गा रहे हैं, ये किसी और ने नहीं सीखा, ये पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं, उन्होंने भी ये जो गीत है वो नहीं सीखा। इसलिए ये वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे-पीछे चलते रहे और खुदावंद के हुक्मों को इस तरह से पूरा कर रहे थे। तो इसलिए वो बर्रे के साथ खड़े हैं। वो उनको ये एक हक जो है जैसे कह लें वो मिला है कि वो बर्रे के साथ खड़े हैं, क्योंकि क्या है वो बर्रे के पीछे-पीछे चलते हैं और एक रूह में बंधे हुए हैं। तो हमें भी अगर हम चाहते हैं कि उस दुल्हन की मानी तैयार हों, तो हमें एक रूह में बंधना है खुदावंद यीशु मसीह के साथ, खुदावंद बाप, खुदावंद बेटा। आगे कल जो है हम थोड़ा सीखेंगे कि जो तख्त है वो पाकीज़गी से ही कह लें कि बना हुआ है, तो हम भी अगर उस तरह से फितर नहीं है, उस तरह से पाक नहीं है, तो तब भी हम उस तख्त तक नहीं पहुंच सकेंगे, है ना? तो इसलिए खुदा के खादमों को जो हमें लूका की इंजील में मिलता है कि इस तरह का हमें शागिर्द बनना है कि हमारे अंदर एक नमक का मज़ा हो, टेस्ट हो, हम बेमज़ा ना हो, हमारे अंदर सुर जो हैं वो हो, हमारे तार जो हैं वो खुदावंद के साथ जुड़े हों। तब जब हम एक खुदावंद का खादम जो है जब हमारे अंदर से जैसे कह लें जब भी बोलते हैं ये आपको पता है गले भी जो है हम कहते हैं ना जब भी गाते हैं तो कहते हैं मेरा सुर थोड़ा खराब हुआ है ना? मेरा गला नहीं ठीक, तो ये हमारे सुर जो हैं ये खुदा उनके साथ मिले होने चाहिए। तभी जब हम क्या कहते हैं हमारे मुँह से जो भी बात निकलेगी, गले से जो भी बात निकलेगी वो खुदावंद की रूह के साथ मिली होगी या खुदावंद का पाक रूह ही हमारे अंदर से बोल रहा होगा। तो ऐसे खुदा के खादम जो हैं, जिसकी तार जो है वो खुदावंद के साथ जुड़ी हुई है, हम एक किस्म का कह लें साज़ हैं, तो हमारी तार जो है खुदावंद के साथ जुड़ी हुई है, खुदावंद पाक रूह के साथ। तो इसलिए जब भी हम कलाम कह लें ऐसे खुदा के खादम वो कलाम को बयान करेंगे तो रूहें बचेंगी, रूहें तब्दील होंगी, यानी जो चर्च है वो तब्दील होगा। उनके अंदर एक जलाली काम, मौजा जो काम है या ज़िंदगियाँ तब्दील होना शुरू हो जाएँगी। लेकिन ऐसे अगर खुदा के खादम जो हैं, जो एक होते हैं जो सिर्फ़ रूहें बचाने वाले हैं, है ना? लेकिन एक जो हैं जैसे जो उस्ताद हैं, वो दुल्हन को उस तरह से तैयार कर रहे हैं, है ना? वो एक-एक
جیسے تار جو ہیں ان کی ایک ایک حکم جو ہے اس کے بارے میں سکھا رہے ہیں، اس کے بارے میں ان کو کیا لیں تیار کر رہے ہیں، ایک ایک تار کو خداوند کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تاکہ وہ کیا کریں، ایک بھی حکم کو نہ چھوڑیں، نہ سارے خدا کے حکم جو ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیے اس کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، ان پہ ہم عمل کریں، ہے نا؟ کیونکہ موسیٰ سے کیا ہوا تھا، اس نے خداوند کے میں کہوں گی کہ ایک ہی حکم کو نہیں مانا تھا، جب اس خداوند نے اس کو کہا کہ جا کے چٹان سے تو کہہ، لیکن موسیٰ نے جا کے اس پہ چھڑی سے مارا تھا، آسا سے وہ جو تھا اس کے پاس، اور اس یقین نہیں کیا تھا کہ میرے بولنے سے ہی چٹان میں سے پانی نکل آئے گا، ہے نا؟ تو خداوند نے کہا کہ تو نیو یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتا، یروشلم میں تو داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سمجھیں کہ ایک ہی حکم کو اس نے کہہ لیں نہیں مانا تھا یا یقین نہیں کیا تھا خداوند نے جو اس کو کہا تھا۔ تو اس لیے ہم جو خدا کے اب لوگ ہیں، ہمیں ایک ایک حکم پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم نئے یروشلم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک ایک تار کو جوڑنا ہے خداوند کے ساتھ، ایک ایک حکم کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے پھر ہم وہ نیا گیت بھی نہیں سیکھ سکتے، ہم پھر اس طرح سے تیار بھی نہیں ہو سکتے جس طرح کہ یہ خدا کے خادم خود بھی تیار ہوئے اور انہوں نے ایسی دلہن کو بھی تیار کیا جو کہ اس وقت اس گروہ جو ہے یہ وہاں پہ ان کے ساتھ ہی موجود ہوں گے، خدا ان کے تخت کے پاس اوپر موجود ہوں گے، یعنی سہون کے لوگ اور جو خدا یسوع مسیح کی دلہن ہے۔ تو اس لیے ہم یا جو خدا ان کے خادم اس طرح سے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا ان کے حکموں پہ عمل کرنا ہے، ایک ایک تار کو جوڑنا ہے خدا کے ساتھ، وہ لوگ یہ گیت سیکھ سکیں گے۔ باقی جو لوگ ہیں جو اپنی ہی مرضی سے یا اپنے بدن کو جلال دینے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ میری واہ واہ ہوئے، ہے نا؟ خدا کے نام کو پتہ نہیں جلال مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ کئی دفعہ معجزے جو ہے یا شفائیں جو ہے خداوند اپنے نام کو جلال دینے کے لیے کرتا رہتا ہے، لیکن خداوند کا وہ جو خادم ہے، وہ جو اس کی اپنی زندگی ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہوتی، ہے نا؟ تو ایسے لوگ وہ اپنے ہی نام کو جلال دے رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن وہ خدا ان کا کہہ لیں یہ والا گیت وہ نہیں سیکھ سکیں گے کیونکہ وہ خدا ان کے حکموں پہ اس طرح سے عمل نہیں کر رہے، ان کی زندگیاں تبدیل نہیں، ان کی زندگیوں سے وہ پھل جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں اس طرح کا نہیں بننا، ہمیں اپنے بدن کو جلال نہیں دینا، کوئی بہ کے میری یہ تعریفاں کرتا رہے، ہے نا؟ کہ میں بڑی اپنی ایک مثال دے رہی ہوں، ہے نا؟ کہ ایسے خدا کے خادم جو ہیں وہ نہ خود تیار ہو رہے ہیں، نہ وہ کلیسیا کو تیار کر رہے ہیں، ہے نا؟ اس لیے ہمیں کس کو جلال دینا ہے؟ جو بھی دلہن کے طور پہ تیار ہو رہا ہے اس نے اپنے آپ کو جلال کہیں پہ بھی نہیں، ہم تو ختم ہو گئے، ہم سمجھے مرے ہوئے ہیں یعنی تو ہمارے اندر زندہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ جب بھی کوئی تعریف کرنی ہے، کچھ ہونا ہے تو یہی کہنا ہے کہ اس کے اندر خدا کام کر رہا ہے، اس کے اندر خداوند کا روح کام کر رہا ہے، تو خداوند کے نام کو جلال ملے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہم نے کسی کو کہنا کہ یہ بہت اچھا ہے، نہیں، ہم نے کہنا ہے اس کے اندر خداوند کام کر رہا ہے نا؟ تو ہم نے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ تو ایسے ہم نے بھی تیار ہونا ہے جو دلہن ہے، اور جو خدا کے خادم اس طرح سے دلہن کو تیار کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں سہون کے لوگ۔ تو خداوند آپ کو برکت دے اور ہم سب کو دلہن کی مانے تیار کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ بیک ٹو انجنا۔ God bless you, sister ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਤਨੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। God bless you। ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ? ਚਲੋ हाँ ਠੀਕ जी, ਹੈ ਤੇ मेरा prayer लिए दुआ करनी है। मेरा दी आज तबीयत नहीं सही ना, खांसी बहुत हो रही है। ठीक। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord,
praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. खुदा पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise, praise, praise the Lord. तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो खुदावन तेरी तारीफ हो यीशु नासरी. खुदावन खुदा तेरा शुक्र करदे यीशु जी तेरे प्यार ले, तेरी दया ले, तेरे फजल ले. खुदावन खुदा तेरा दिल दियां गहराइयां ते तेरा शुक्र करदे अज कलाम ले. अज कलाम वास्ते तेरा शुक्र करदे हैं परमेश्वर प्यारे पिता. ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ. ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਈਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ. ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਕੁਵਾਰੀ ਦੀ ਮਾਜਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀਆ. ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੋੜੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ. ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਈਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ. ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ. ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਸਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ. ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ. ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿਲ ਠੁਕਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ. ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ. ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ. ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ. ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ. ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ. ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ. ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ. ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਖਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ. ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਸਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ. ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ. ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ. ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾੜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ Yes. ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਲਾਮ ਲਈ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਲਈ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਬਦਨ ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Yes, ਖੁਦਾ Lord. ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤਾਕਤ ਬਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੀ ਰਵੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਬਣੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਰੋਮਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵਿਆਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਮਕਸਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਇਕਲੌਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਠਹਿਰਿਆ ਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਈਵਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹ ਦੁਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰ ਠਹਿਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਸੈਮੂਅਲ ਔਰ ਬਰੂਥ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟੀ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਰੂਥ ਔਰ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਛੂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਬਣ ਤਾਕਤ ਬਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਰੂਥ ਔਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬ੍ਰਦਰ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਸਮਾਇਰਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਆ, ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਵੇ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਸਿਸਟਰ ਮਾਇਆ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਲਈ, ਨਿਦਾ ਲਈ, ਵਫਾ ਸਿਸਟਰ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਿਸਟਰ ਲਈ, ਮਹਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਹੁਣਾਂ ਲਈ, ਕਿੰਜ਼ਾ ਸਿਸਟਰ, ਨੀਲਮ ਸਿਸਟਰ, ਸਬਾ, ਵਫਾ ਸਿਸਟਰ, ਸਮੀਨਾ ਸਿਸਟਰ, ਸੁਰਈਆ, ਸੈਡਰਿਕ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆਏ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਏ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ, ਸ਼ੂਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਕੁਵਾਰੀ ਦੀ ਮਾਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ और जलाली नाम च मांग लेने पा लेने। आमीन आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस। Amen. God bless you too. जी, किसी ने कुछ अगर कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम फिर मीटिंग को बंद करें। मैंने खुदा उनकी हुजूरी को बड़े ग्लोरियस तरीके से, यानी एक खुदा उनके जलाल को देखा है कि ऐसे जैसे हमारे ऊपर ठहरा हुआ है खुदावंद। और ये भी मैंने देखा है कि जैसे हम एक रूम में बंधे हुए हैं, ऐसे दायरे में मैंने देखा है कि हमने वाइट ड्रेस पहने हुए हैं और जैसे दायरे में खड़े हैं, हाथ हमने
एक दूसरे के जैसे पकड़े हुए हैं, कंधों पे जैसे रखते हैं। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जो भी कुछ खुदावंद हमारे साथ बात कर रहा है, जो खुदावंद हमें सिखाना चाह रहा है, मेरा ईमान है कि हम सब उसको ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद के हुक्मों पे अमल करें। तो यही खुदावंद ने पहले मुझे दिखाया है कि खुदावंद हमारे साथ है। कि जैसे अगर आपने भी कुछ देखा है या कुछ महसूस किया तो आप शेयर कर सकते हैं। किसी ने भी कुछ। ओके, चलें, ठीक है जी, फिर गुड नाइट जी सारा।